राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों व विभिन्न उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। साथ ही कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि को हुए नुकसान से उबरने के लिए सरकारी बैंकों की ओर से उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा भी की। साल 2020 में कोरोना संकट के बाद यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैंक अधिकारियों से पहली मुलाकात है। प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी अधिकारियों से अच्छी तरीके से बात हुई। हमने सरकार द्वारा चलाई जा रही बैंकों के लिए स्कीम, नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर निर्यातकों की समस्याओं पर भी बैंकों से चर्चा की और निर्यातकों के लिए व्यवस्था को आसान करने के निर्देश दिए। If that was yesterday, today in the morning I've had a detailed annual review with the public sector banks and their chiefs. There again, there was a detailed discussion. Each of the banks together have given me through the IBA presentation on where all of their performances. In fact, after that we had a detailed interactive session where both Debashish and myself have very clearly laid out the picture of the government's various schemes which are going on, particularly after the second wave, and also sort of reviewing what was announced through the Atmanirbhar Bharat, several announcements, how the banks have taken it all forward, and now post the second wave, the announcements which have been made, we would like the banks also to have their role to take it forward to the sections for whom they are designed and aimed at. Over and above that, clearly, I've requested the banks to have at various regional levels interaction with export promotion agencies, with the chambers of commerce and industry, so that the requirement of exporters can all be timely, well addressed, and between public sector banks there should be some kind of a simple but yet a uniform approach, so that exporters are not made to run between one bank and another, scouting to see where the offer is better. So public sector banks have all been requested to have that interaction, not just with the export-oriented industries, but also with their chambers and with their Federation of Indian Exporters Organization, the FIO. Other than that, both Debashish Panda and myself have highlighted the fact that today's nature of banking is also changing. We see even from industry inputs that people are able to raise finances even outside of the banking system. Several decades post-independence, India has depended only through the banks funds which businesses would want to have. Now industry themselves recognize that they have avenues outside of the banks, in that they are able to go to the market and raise enough revenues. Even our banks themselves have raised revenues from the markets. So there was a bit of a discussion on those avenues also to be understood by the banks, and focus on how they can extend credit to wherever it is required. In that, we've also, just as we placed emphasis on the export-oriented industries, we've underlined the fact that Prime Minister has been emphasizing all over the country that there should be by district an identification of such goods which can be found to have great export potential. And that is why you had this one district, one product. In Uttar Pradesh, only a few days ago I had gone, and both the SIDBI and the Exim Bank were with me to carry that forward in the name of Ubarte Sitare, where you identify champions within that particular chosen sector and help them to do everything it takes for exporting the products. In that, credit will be given
assistance will be provided for technology infusion, and also hand-holding will happen for export of products. So I've requested all the banks all over the country to work with state governments and ensure that by district, that one district, one product also gets benefit from the banks. SIDBI and Exim Bank together are also helping in providing cluster facilitation for such things, and also providing common infrastructure which will be required by these export potential manufacturers who are largely in small and medium areas, but for them to have a common infrastructure within that district as is required by that product manufacturer, banks can also play a role. We have highlighted that. FinTech is one of the areas in which banks are doing quite a lot of work. I've highlighted to them that there are two aspects. One, of course, for the banks themselves to have the benefit of technology being used, and another, FinTech as a sector itself also requires a lot of assistance. I've asked banks to please look at that area as well and approach through various other information systems that they may have such people who are already furthering their businesses, but that is one of the ways in which we can provide greater stimulus. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सरकार द्वारा आज राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार सरकार ने तय किया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। साथ ही 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान खुल सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतने का अनुरोध किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 1120 करोड़ की लागत से बनी 41 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 55 किलोमीटर व 4.55 किलोमीटर की 4 सड़कों का उद्घाटन किया। यह सभी सड़कें राज्य उच्च पथ यानी स्टेट हाईवे की श्रेणी की हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन और जयंत राज ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष पथ निर्माण विभाग मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन पर सभी को साधुवाद किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस परियोजना के पूरा होने को सपना पूरा होने जैसा बताया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 के बाद हुए सर्वेक्षण के बाद हमने कार्य शुरू करवाया। इस कार्य से लोगों को काफी सुविधा हुई है। हमने लक्ष्य लिया था कि बिहार के सुदूर इलाके से पटना तक 6 घंटे के अंदर पहुंच सकेंगे और अब हमारा लक्ष्य इसे 5 घंटे तक करने का है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि अपने कर कमलों द्वारा राज्य उच्च पथ संख्या 84 घोघा पंजवारा पथ परियोजना का रिमोट द्वारा लोकार्पण करने की कृपा करें। साथ ही साथ स्थल पर उपस्थित जनप्रतिनिधि द्वारा शिलापट का अनावरण। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार में हम लोगों ने विकास के नए आयाम जोड़े हैं, आज उन्हीं के कर कमलों द्वारा बिहार को 4 नए एसएच का सौगात मिला है और मैं इसके लिए तमाम बिहार वासियों को भी बधाई देता हूं। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने सपना देखा है बिहार के लिए, उस बिहार के उस सपने को साकार करने में जो आपने पूरे विभाग को एक दिशा दी है कि 5 घंटे की अवधि में हम किस प्रकार से बिहार के हर कोने से हम पटना पहुंचे, उस कल्पना पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार आपके जो दिशा निर्देश रहे हैं उसका विभाग को बहुत लाभ मिला है। और अभी हाल में जिस प्रकार से आपने नए सड़कों के अलाइनमेंट को खुद रुचि लेकर खुद उस चीजों को स्वीकृत किया,
और अब उसके माध्यम से विभाग ने उन सारी सड़कों को कुछ केंद्र स्तर पर हम लोगों ने भेजा है। और आने वाले दिनों में जो सपना आपका रहा है कि किस प्रकार से बिहार में हम लोग आवागमन को सुगम बना पाए, उस दृष्टि से विभाग काम कर रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक कोई न कोई 4 लेन से हम लोगों को सुविधा दे पाए, उस दिशा में विभाग काम कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने हमेशा बिहार के बारे में चिंता की और उन्होंने मन में एक ठान लिया कि हमें बिहार की कैसी दशा और दिशा देनी है, उसके लिए उन्होंने जो अपना प्रगति के पथ पर हमेशा निरंतर उनका प्रयास रहा है, जिसका प्रतिफल आज दिखाई पड़ रहा है हमारे पथ निर्माण विभाग के द्वारा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो सपना देखा था, शायद हम जब 2000 में आए थे तो ऐसा लगता था कि हम 7 घंटे और 8 घंटे क्या 10-10 घंटे में पटने आते थे हम लोग विधायक होने के बाद भी, और पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन आज हम सभी लोग जो जहां से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि मुझे बिहार के इस सिटी में कहीं से भी हो, हम 5 वर्षों में 5 घंटे में हम आएंगे। और यही कारण है कि आज हम कहीं से भी 4-5 घंटे में 6 घंटे में हम अपने पटने में पहुंच जाते हैं, कैपिटल में। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो काम हुआ है आज रोड के लिए, मैं जितनी बधाई दे सकती हूँ अपने इस बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग को, इन सभी की और सभी लोगों के प्रयत्न से आज जो ये काम हुआ, एक बहुत बड़ा काम हुआ। मैं सबसे पहले पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को, अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी को, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड पंकज कुमार जी को और इनके सभी अधिकारियों को और अभियंताओं को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आपने आज भी 4 योजनाओं का उद्घाटन कराया, ये अवसर दिया और तेजी से सब जगह पथ निर्माण का काम चल रहा है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो भी काम हो रहा है तेजी से, भी हमारे सभी साथियों ने अपनी बात कहने के सिलसिले में सब बातों को बता दिया कि पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, 2005 तक क्या हालत था। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण कराया था 2006 में, तो स्थिति क्या थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सब जगह पथ का निर्माण, और गांव से क्या लिंक था लोगों का, शहरों से क्या लिंक था, कितने लोग आते जाते थे, कितनी गाड़ियां चलती थी। अब उसके बाद जो काम शुरू किया, जब हम लोगों को मौका दिया बिहार के लोगों ने काम करने का, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया बिहार में, तो इसके लिए कितना पथ का निर्माण किया गया। और केंद्र सरकार में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हम उनके सरकार में मंत्री भी थे, और उस समय जो उन्होंने शुरू किया केंद्र सरकार की तरफ से पथों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो काम शुरू किया गया, और उसमें बिहार के लिए कितना जगहों पर चयन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर ये जो काम केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो किया गया, उससे लोगों को कितनी सुविधा मिली। हम लोगों ने तो पहले सोचा था कि राजधानी पटना से जो दूर दराज का इलाका है, उससे सबसे दूर इलाके से चलकर पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगे, इसके लिए काम शुरुआत किया। और जब वो पूरा हो गया, तब हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया कि अब जो सबसे दूर के इलाके हैं, वहां से 5 घंटे का समय लगे पटना आने में। अब इसके लिए काम चल रहा, और अब कितना यातायात बढ़ गया, कितनी गाड़ियां बढ़ गई। तो उसको देखते हुए तो जो पहले सड़कें बनती थी, अब 7 मीटर चौड़ी रही, बहुत चीजें बनी। अब उसके बाद तय हुआ कि 10 मीटर हो, फिर हुआ कि 4 लेन बने। तो हर तरह से जो काम किया जा रहा है, और जान लीजिए जो भी हम लोगों का आज जो आपने उद्घाटन करवाया समूचा का, ये जो स्टेट हाईवे 102 जो बिहिया जगदीशपुर पीरो दनवार बिहटा है, स्टेट हाईवे 85 अमरपुर अकबर नगर, स्टेट हाईवे 84 घोंघा पंजवारा,
स्टेट हाईवे 91 बिहारीगंज बाईपास, तो जो स्टेट हाईवे बना है, देखिए बहुत अच्छा स्टेट हाईवे हम लोगों का बनता है और आवागमन लोगों का कितना बढ़िया हो रहा है। कभी सोचा था कि कितना समय और कितने समय में लोग जाते थे? अभी हमारी उप मुख्यमंत्री बोल रही थी कितना देर लगता था कहीं से कहीं आने में, और आज कितना समय लग रहा है। तो ये सब सुविधा तो हुई है, लेकिन अब गाड़ियां इतनी चलने लगी हैं कि अब उसके चलते हम लोगों को तो चौड़ीकरण पर और जोर देना है, और अब सब लोगों को खुशी हो गई है। तो जो सब तरह से, और देख लीजिए बिहार सरकार ने शुरुआती दौर में तो जो चला था और बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं थी वो ठीक नहीं थी, उसका देखभाल नहीं किया गया था, पहले की बनी हुई बहुत सारी, तो उसको भी हम लोगों ने करवाया और 900 करोड़ से भी कभी 1000 करोड़ रुपया तक हम लोगों ने खर्च करके सब जो केंद्र की सड़कें थी उसको जो राज्य में बनी उसको भी ठीक हम लोगों ने करवाया था। तो शुरू से ही हम लोग लगे रहे और हम लोग तो सोचे कि मिलेगा, तो नहीं मिला तो एक अलग बात है, लेकिन हर प्रकार से जो देखने का काम किया गया है और जिस तरह से बाहर के लोग आते हैं और बिहार होते हुए जो आगे जाते हैं, तो किस तरह से बाहर प्रशंसा करनी शुरू की थी कि क्या अच्छी स्थिति है सड़कों की, क्या अच्छी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, जो बाहर इसके बारे में चर्चा करते थे। तो खैर ये सब करते रहे और अंत में जिसका जिक्र किया गया कि अब हम लोगों ने तो तय कर दिया कि भाई 5 घंटा जो हमारा सबसे दूर की जगह है वहां से आने में लगे, उसके लिए अब काम हो रहा है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज उत्तरी दिल्ली में वर्धमान जैन संघ द्वारा आयोजित निशुल्क जांच शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन पीतमपुरा के चंदगीराम जैन हॉल में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर आम जनता के साथ जांच शिविर से स्वास्थ्य लाभ लिया और वर्धमान जैन संघ का इस प्रयास के लिए साधुवाद किया। इस अवसर पर वरिष्ठ संपादक ललित सुमन, रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष निगम पार्षद सुजीत ठाकुर, अनुज जैन, वर्धमान जैन संघ व जैन संघ के अधिकारीगण, अध्यक्ष सुरेश जैन, अश्विनी जैन, अंकुर जैन व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जैन स्थानक पीतमपुरा में जैन मुनि महाराज आदित्य मुनि जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ और यहाँ पर जैन समाज के द्वारा निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। समाज की सेवा करना, जैन समाज भारत की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से जन कल्याण के लिए काम करना, जैन समाज, दिल्ली का जैन समाज दिल्ली को संवारने में, दिल्ली को आगे बढ़ाने में, दिल्ली के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और आज जैन समाज के लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि हम एक परिवार भाव से यहाँ आए और यहाँ जो कोरोना के समय में जैन समाज ने समाज सेवा का काम किया है वो बहुत सराहनीय है और निश्चित रूप से कोई भावना
जो हमारे भगवान महावीर जी ने संदेश दिया है, धर्म संस्कृति की रक्षा को आगे करते हुए काम करना, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जैन समाज। भारत का जैन समाज भारत के अंदर एक सज्जन शक्ति के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी सभी सज्जन शक्तियों को एकजुट करके देश विरोधी शक्तियों को डिमोरलाइज करना और उनको उभरने नहीं देना, इसके लिए हम काम करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर उपस्थित जनता व पदाधिकारियों से बात की और उनके विचार जाने। आज हमने जो है अपने कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को बुलवाया था। उनकी पूरी टीम ने जो हमारा सहयोग दिया उसके हम आभारी हैं और पूरा जैन समाज उनके साथ है। जैन समाज पूरी दिल्ली का एकजुट है और हम सभी चाहते हैं कि ऐसे जो है कैंपों का आयोजन किया जाए जिससे सभी को जो है उसका लाभ मिले। हमारी दो संस्थाएं वर्धमान जैन संघ उत्तरी पीतमपुरा और श्री SS जैन सभा पूर्वी पीतमपुरा मिलकर सामाजिक धार्मिक जीवन को उठाने के लिए क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस तरह के कामों में संलग्न रहते हैं। फ़िलहाल 2 बार पेंडेमिक कोरोना महामारी के पश्चात आयुष के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेदिक तरीक़ों से शारीरिक इलाजों के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, प्रतिरोग क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार काम कर सकते हैं। 4 कैंपों का लड़ी के रूप में आयोजन 6 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और आज चौथा कैंप 25 तारीख के रूप में आयोजित हुआ। प्रत्येक कैंप में लगभग 100-125 भाई बहन लाभान्वित होते हैं और सब कुछ निःशुल्क समाज की तरफ से व्यवस्थाएं रहती हैं। भविष्य में भी किस प्रकार हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज सेवा में आगे रह सकते हैं, इस प्रकार का हमारे समाज का पूरा मानस तैयार रहता है और हम अपनी जिम्मेवारियों के प्रति भविष्य में भी सजग रहेंगे और राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। राष्ट्र सरकार अपना कार्य करती हैं, शासन प्रशासन हम सभी की भी जो अपनी नैतिक जिम्मेवारियां हैं, एक सिटीजन के रूप में, एक समाज के अंग के रूप में हम उनका पूरा निर्वहन करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, कोविड नियमों का पूरा पालन करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते रहें ताकि इस कठिन समय में भी हम अपने व्यापारिक सामाजिक रिश्तों को सहजता से आगे ले जा सकें और इस दुर्गम समय को आसानी से पार कर सकें। हम लोगों ने मतलब ये आदेश गुप्ता जी को बुलाया और अपना जैसे हमारा प्रीतमपुरा शालीमार बाग क्षेत्र, इसमें बीजेपी का गढ़ है, तो उसमें हमने जैसे फ्री मेडिकल कैंप लगा रखा है यहाँ पे और अलग अलग विभाग के अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं। और पीछे कोरोना काल में हमने यहाँ पे 2000 लोगों को फ्री भोजन व्यवस्था की कर रखी थी। तो इसमें हमने ये है कि अपना जैन लोग अपना बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं और सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा वो पर्पस था ये कैंप लगाने का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे हमारे जैन समाज ने पूरी निष्ठा के साथ फ्री मेडिकल कैंप यहाँ लगाया, जिसमें पूरे प्रीतमपुरा जैन समाज और जो भी आसपास के एरिया के सदस्य हैं उन सब की पूरी तरह से फ्री सेवा की। और ये यहाँ का उत्तरी जैन समाज पूरी तरह से इसमें तत्पर रहता है। कोई भी काम होता है उसके लिए हमेशा आगे से आगे वो बढ़ रहता है। दिल्ली वासियों को यही संदेश है, कोरोना काल चल रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, प्रथम। दूसरा ये है कि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम जो सामाजिक सेवा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। हमने जो पहला कोरोना काल आया था, लॉकडाउन था, उसके अंदर यहाँ पे लगभग सुबह शाम कोई भी संस्था दोनों टाइम खाना नहीं बांटती थी। हमारी संस्था ने सुबह शाम 2 से 2,500 लोगों का खाना बांटा। यहाँ से वृद्ध आश्रमों में भी खाना जाता था। दूसरे कोरोना काल ने हमारे समाज ने अपना चंदा इकट्ठा करके कंसंट्रेटर्स मंगाए, ऑक्सीजन सिलेंडर डेली बेसिस पे बांटे और मास्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जो ऑक्सीजन मास्क थे उन सब का अरेंजमेंट करा। इसी के साथ साथ हमने कुछ टाइम पहले ऑर्थोपेडिक कैंप भी लगाया था हमारी दूसरी जैन स्थानक में, वो भी हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद हमने करीबन 300-350 कोरोना वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई थी अपनी जैन स्थानक में। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम ये जो सेवा का कार्य है इसको आगे से आगे बढ़ाते जाए, जिससे आगे की आने वाली पीढ़ी भी सेवा भाव के लिए अपने हृदय में जगह बनाए और आगे जैन समाज का नाम बढ़ाए। ऐसा है, ये हमारे जैन समाज का प्रोग्राम था
3 दिवसीय था, 5 तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख। ये फ्री चेकअप था। समाज ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। आज उसका वो था संपन्न। आज हमने अध्यक्ष श्री अवधेश जी को और पार्षदों को सबको बुलाया था इनके अभिनंदन के लिए, उसको करने के लिए। हमारे समाज का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमने सभी का अभिनंदन अच्छी तरह से किया है। सब कुछ मतलब ठीक ठाक से, प्रेम से, प्यार से सब कुछ ठीक हुआ। वरिष्ठ संपादक ललित सुमन और राज सर्वप्रथम टीम ने आज पीतमपुरा के न्यूरेपा बायोटेक सेंटर का दौरा किया। यह सेंटर पिछले काफी समय से जनता की सेवा अपने उत्पादों व थेरेपिस्ट के माध्यम से निःशुल्क कर रहा है। वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने सेंटर की कार्यशैली की प्रशंसा की और इसे सेवा का एक नया माध्यम बताया। सेंटर के सदस्यों व उपस्थित जनता ने राज सर्वप्रथम की भावना का उद्घोष भी भारत माता की जय के नारे के साथ किया। राज सर्वप्रथम टीम ने इस मौके पर थेरेपी के महत्व को जानने का प्रयास भी किया। थेरेपी के बारे में मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आजकल जैसे लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है, एक बिजी स्केड्यूल में लोग रहने लगे हैं, तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी की, जो उनको करना चाहिए वो उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी का एक सॉल्यूशन हमारे न्यूरेपा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने निकाला कि उन्होंने आर्टिफिशियली वो सारी चीज़ें इन मशीनों के ज़रिए लोगों को अवेल कराने का एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि लोग अपने बिजी स्केड्यूल से एक नियमित टाइम निकाल कर यहाँ आए और खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी दें। बिकॉज आजकल में अगर मैं बात करूँ लेडीज़ लोगों की, तो वो लोग घर पे अपना पूरा टाइम देती हैं, लोगों की हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है, हस्बैंड होता है, सास ससुर होते हैं, बच्चे होते हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ का क्या? अगर वो ही हेल्दी नहीं है तो एक हेल्दी लाइफ वो खुद नहीं जी रहे हैं तो वो आपको कैसे दे सकते हैं? तो ये चीज़ें सोचकर हमारी इस कंपनी ने जो शुरुआत की है, मैं उसको खुद से पर्सनली भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अपने पेरेंट्स लोगों को भी मैं लेकर आई स्पेशली, और उनके अंदर जो मैंने चेंजेस देखा है उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं आगे इस कंपनी में काम करूँगी और लोगों को भी ये चीज़ें बताऊँगी कि कैसे ये उनके लिए हेल्पफुल है। इन मशीनों का प्रयोग करने के बाद उन लोगों की जितने परेशानियाँ हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि परेशानियां सडन नहीं आती हैं, वो भी वक्त लेती हैं आने में। उसी प्रकार उनको भी उतना ही वक्त देना होगा पेशेंस के साथ और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि हाँ डेफिनेटली जो भी है वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो मैं उनको यही चीज़ें कहना चाहूँगी कि वो यहाँ आए और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ आके अपने आप को ठीक करने का प्रयास और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए वो ये शुरुआत ज़रूर करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जवाहर चौक टीकाकरण केंद्र में एमपी महा वैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के मंत्री व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों, कोविड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, साथ ही मोबाइल कोविड वैन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने टीकाकरण पर जोर दिया और कहा कि मेरी सभी धर्म गुरुओं, राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवियों और गणमान्य लोगों से अपील है कि वे सारे मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएं और समाज को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और बताया कि क्यों इस महाअभियान की दोबारा जरूरत पड़ी। ये प्रथम वैक्सीनेशन महाअभियान के बाद ये दूसरा महाअभियान है, ये चल रहा है। इसे चलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बीच में कोविड संक्रमण नियंत्रित रहने के कारण खत्म नहीं हुआ, लेकिन संक्रमण कम हो गया है और इसलिए वैक्सीनेशन की गति भी कम हो गई थी। पहला डोज जिनने नहीं लगवाया वो भी थोड़ी संख्या कम हुई थी और पहला डोज लगा के कई लोग दूसरा डोज लगवाना भूल ही गए, जबकि संपूर्ण सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच है वैक्सीन, उसका प्रभाव तब होगा जब दोनों डोज लग जाएं। दोनों डोज लगने के बाद वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि या तो कोरोना का संक्रमण होगा नहीं या होगा तो उसका घातक असर नहीं होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।